Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Indian Contract Act, I have discussed certain important concepts relating to the Indian Contract Act. Today I will discuss with the void agreements as well as voidable agreements. If we talk about the void agreements, a void agreement is a contract that is not legally enforceable, that can't be enforced by the law starting from the time. This means that is void ab initio, and it when it was created. While both a void as well as voidable contract are null, and a void contract can't be ratified in a legal sense. A void contract is treated as it was never created and becomes an unforeseeable in the court of law. If we talk about the void agreement, that is defined under Section 2G of the Indian Contract Act. According to Section 2G, that a void agreement is one which is not enforceable by the law. A void agreement does not create rights, obligations, or duties. It does not give rise to any legal consequences. Such agreements are void ab initio. This means these agreements are treated as void in such a way that it was never created. दिस मीन्स ए वाइड एग्रीमेंट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं हो सकता. एंड द एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, और ये कानून के द्वारा भी एनफोर्सेबल नहीं है. एंड इट इज वाइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. इट इज वाइड अब इनिशियो, दैट इज व्हेन द एग्रीमेंट वाज मेड. जब ये एग्रीमेंट किया गया था, ये तभी से इसको जीरो माना गया है. इसको बिगनिंग से इसको दैट इज हैविंग नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. This means a void contract is a formal agreement that is affecting illegitimate and enforceability from the moment it was created. This means it affects the illegitimacy and enforceability from the moment, from the time it was created. This means an agreement must fulfill all the essentials of a legal agreement elements. जैसे मैंने आपको बताया था जो सेक्शन 10 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, दे इट डिस्क्राइब सर्टेन essentials for a valid contract. If these essentials are fulfilled, then only we can say that that agreement is a valid contract. तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन वो ले सकता है. बट if it does not fulfill all the requirements as discussed in section 10, then such an agreement is void. This means to be enforceable in the eyes of law, a legal contract must be enforceable by the law. एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होना जरूरी है. If these prerequisites are not met with द एग्रीमेंट दैट इज नल एंड वाइड. यदि वो जो रिक्वायरमेंट है जो सेक्शन 10 के तहत बताई गई है, यदि वो पूरी नहीं होगी, तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो नल और वाइड कहलाएगा. उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है. तो दिस मीन्स डिक्लेयर्ड एज वाइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सच एग्रीमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड. जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 11 सेज दैट एग्रीमेंट मेड बाय माइनर और द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज ए वाइड एग्रीमेंट. एक ऐसा एग्रीमेंट जो एक माइनर व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ये किसी अनसाउंड व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइड होता है. दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स द कैपेबिलिटी इज मस्ट ऑफ द पार्ट इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. ऐसी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है उनकी कैपेबिलिटी होनी जरूरी है. दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. इफ सच पार्टीज आर नॉट कैपेबल मीन्स वो मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, एंड दैट पार्टी मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ. तो यदि ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी तभी आप ये कहेंगे कि दैट पार्टीज आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. तो दिस मीन्स इफ द पार्टीज आर माइनर or the person of unsound mind, then we can say that that agreement is void. Second one is agreement of which consideration or the object is unlawful. एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका कंसिडरेशन या जो ऑब्जेक्ट है वही अनलॉफुल हो, ऐसे एग्रीमेंट भी वाइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आते हैं. दैट इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो सेक्शन 23 के अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, ऐसे एग्रीमेंट्स के बारे में बताया गया है जिसका कंसिडरेशन और जो उसका जो उद्देश्य है यदि वो अनलॉफुल है, अवैध है, तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो भी हमेशा वाइड की कैटेगरी में ही शामिल होंगे. दे हैव नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. आल्सो द अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, एग्रीमेंट मेड अंडर ए बायलैटरल मिस्टेक मीन्स बोथ टाइप ऑफ मिस्टेक. मतलब एक ऐसी मिस्टेक जो दोनों तरफ से मिस्टेक है, दोनों पार्टीज को कहीं ना कहीं मिस्टेक से प्रभावित हैं. तो और सच मिस्टेक इज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट that is material to the agreement, then such agreement will also be void agreement.
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ लॉ कांट बी एक्सक्यूज in case where there is bilateral mistake of fact, mean both the parties entering into the contract are under the mistake of fact that is material to the agreement, then such agreement will be void. वो agreement void होगा. And according to section 26, agreement made without consideration will also be void. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 25 है वो ये कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट जिसके अंदर यदि कंसिडरेशन शामिल नहीं है वो भी आपका वाइड होता है. मीन्स एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वाइड बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके एक्सेप्शन उसके संबंध में दी गई है कि या तो वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किया गया हो. तो ऐसी स्थिति में जो ग्रेचुअस गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं बिना कंसिडरेशन के दिए जाते हैं तो वो भी आपके वैलिड माने जाते हैं. बट जनरली वी कैन से दैट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वाइड. दिस मीन्स वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. वाइड कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी हो सकता है व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू बट आफ्टर इट इज फॉर्म ड्यू टू सम इमिटेशन इट बिकम्स नॉन एनफोर्सेबल. भी मान के चलो कई बार ऐसा होता है कि कोई एग्रीमेंट शुरू में वैलिड होता है परंतु बाद में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जब वो लीगल इन्फोर्सेबिलिटी भी आप कह सकते हैं कि कोई कानून में चेंज आ गया या किसी भी वजह से वो कुछ भी हो सकता है. तो वहां पर जब आप देखेंगे तो कई बार वो जो एग्रीमेंट जो पहले वैलिड था वो एनफोर्सेबल था बट तो बाद में वो हो सकता है कि वो अनएनफोर्सेबल बन जाए, उसको आप पूरा ना कर सकें. दैट मे बिकम इम्पॉसिबल टू फुलफिल दैट एग्रीमेंट. देन दैट एग्रीमेंट आल्सो बिकम्स द वाइड एग्रीमेंट. Also, the agreement in respect of marriage will also be void, according to Section 26 of the Indian Contract Act. And according to Section 27, agreement in respect of trade will also be void agreement. And agreement in respect of legal proceedings, according to Section 28. Section 28 के तहत ये कहा गया है कि ऐसे एग्रीमेंट जो कहीं ना कहीं इन respect of legal proceeding किए जाते हैं वो भी एग्रीमेंट सबके सब वाइड माने जाते हैं. Also, the agreement of which the meaning is not certain. मीन्स ऐसे एग्रीमेंट जिनका मीनिंग ही सर्टेन नहीं है, मीन्स विच इज अनसर्टेन, जो अनसर्टेन है, सच एग्रीमेंट विल आल्सो बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वाइड एग्रीमेंट्स. आल्सो द एग्रीमेंट मेड बाय वे ऑफ वेजर, जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी आपके वाइड की कैटेगरी में ही शामिल होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. And apart from these, all the agreements which are contingent on the impossible events, ऐसी इवेंट ऐसी घटना जो कभी घटित हो ही नहीं सकती, दैट इज इम्पॉसिबल. तो ऐसी जो एग्रीमेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट के आधार पे बनाए गए हैं, ऐसी इवेंट जो कभी घटित हो ही नहीं सकती, जिसका होना संभव ही नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट भी वाइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में शामिल होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 of the Indian Contract Act. So this is the list of certain agreements which are coming under the category of wide agreements. Means wide agreement are the wide ab initio, which is not having the enforceability under the law. जो कानून के अंदर जिसको एनफोर्स करवाया ही नहीं जा सकता. If we talk about these two words, that is wide agreement, another is wide contract. यदि हम wide agreement या wide contract की बात करते हैं तो there is certain differences between these two. If we talk about the wide agreement, this is an agreement which is wide ab initio. That is, at the time of creation of the agreement, that is wide, that is having no value in the eyes of law. If we talk about the wide contract, a wide contract is one that is valid at the time of creation, but afterwards it becomes impossible. It becomes void due to supervening circumstances. कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो शुरू में तो वैलिड माने जाते हैं परंतु बाद में कई बार ऐसी कुछ सुपरवेनिंग सर्कमस्टांसेस आ जाती है जिसकी वजह से वो वाइड बन जाते हैं. तो सच एग्रीमेंट वो जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे. बट जब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो वो जो एग्रीमेंट है वो वाइड अब इनिशियो ही है. If you talk about the wide agreement, that is neither enforceable nor doesn't create any legal consequences for the parties. फिर जो वाइड एग्रीमेंट है क्योंकि वो तो वाइड अब इनिशियो है तो वहां पे वो एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकते. दे आर नॉट एनफोर्सेबल एंड नोर क्रिएट एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज. जब एनफोर्सेबल ही नहीं है तो उनकी कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने को नहीं मिलते. बट इफ यू टॉक अबाउट द वाइड कॉन्ट्रैक्ट, a wide contract is enforceable until the supervening event or circumstances renders it to become a void. नेचुरली कि वो पहले से तो वैलिड था परंतु बाद में कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से वो बाद में वाइड बन गया. We talk about the wide agreement that is void
agreement is a void due to absence of one or more necessary elements that is essential for a valid agreement. नेचुरली कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सेक्शन 10 के अंदर कंडीशंस बताई गई, यदि उनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती, एक या एक से ज़्यादा, तब हम ये कहेंगे कि वो जो एग्रीमेंट किए गए वो वाइड एग्रीमेंट कहलाएंगे. बट on the other hand, if we talk about the void contract, that is one that becomes void due to impossibility of the performance. कई बार ऐसा होता है कि वो उसको impossible हो जाता है परफॉर्म करना ड्यू टू सर्टेन मतलब सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी. तो दैट इन दैट केस दैट इज नोन एज वाइड कॉन्ट्रैक्ट. इन द केस ऑफ वाइड एग्रीमेंट देयर इज नो रेमेडी अवेलेबल इन द लॉ. जबकि वाइड एग्रीमेंट जब होते हैं उनके अंदर क्योंकि वो लीगली एनफोर्सेबल ही नहीं है, तो वहां पे कोई रेमेडी भी अवेलेबल नहीं होगी. बट इफ यू टॉक अबाउट द वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ए रेमेडी इज अवेलेबल इन लॉ. जबकि वाइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक रेमेडी अवेलेबल होती है ओनली टू द एक्सटेंट दैट रिस्टोर्स एनी बेनिफिट रिसीव्ड बाय द पार्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी. भी वहां पे यदि वो पहले आपको जैसे पता है कि जब जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट था वो पहले से वैलिड था, परंतु वो बाद में ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वो बाद में वाइड बना है. परंतु यदि किसी भी पार्टी के द्वारा कोई भी एक्सटेंट किसी भी एक्सटेंट तक यदि वहां पे कोई बेनिफिट रिसीव किया गया है दूसरी पार्टी से, तो देन वो जो बेनिफिट जो उसने पार्टी ने रिसीव किया उसको रिस्टोर करना पड़ेगा. इफ वी टॉक अबाउट द वाइड agreement, the main cause of the agreement being void due to the deficiencies with respect to the agreement during the time of creation. क्योंकि वहां पे जब एग्रीमेंट हो रहा था उसके समय में वहां पे कुछ ऐसी डेफिशिएंसी पाई गई जो एग्रीमेंट की कंडीशंस को पूरा नहीं कर रही थी, तभी वो वाइड हुआ. बट इफ यू टॉक अबाउट द वाइड कॉन्ट्रैक्ट, द मेन काज ऑफ द वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज द चेंज इन द कंट्रीज लॉ. कई बार क्या होता है कि कंट्री के कानून में चेंज आ गया, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से वो जो एग्रीमेंट था वो वाइड बन गया है. दैट इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया है. तो दीज आर द सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द वाइड एग्रीमेंट एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट. वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप वाइड एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो होता है वो भी वाइड माना जाता है. कि मीन्स यदि आपने किसी भी व्यापार को रोकने के संबंध में कोई किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है तब भी वो वाइड की कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. मीन्स वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट इट शुड बी वैलिड. किसी भी एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि वो वैलिड होना चाहिए. Means it must fulfill all the requirement that is described under section 10 of the Indian Contract Act. According to section 10, all the agreements are contract which are not hereby expressly declared as void, and the contract can be void due to the several reasons. यदि हम void की बात करते हैं तो इसके लिए कई रीजन हो सकते हैं. It could be void ab initio. Ab initio कब होगा? When the agreement to do an illegal act. नेचुरली कि जहां जो तुमने एग्रीमेंट किया वो एक इलीगल एक्ट को करने के पर्पज से किया है, तो इट इज वाइड फ्रॉम द मोमेंट इट वाज मेड. इट वाज अ वाइड एब इनिशियो. इट इज अगेंस्ट इफ इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फेयरनेस अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, तब भी वो एग्रीमेंट क्या होता है? वाइड होगा. थर्ड वन इज इट बिकम्स अ सब्सिक्वेंटली वाइड ड्यू टू चेंज इन द लॉ. बाद में पहले तो वो वैलिड था परंतु लॉ में चेंज आया जिसकी वजह से वो वाइड बन गया. इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं बिहार वाला जो शराबबंदी हुई थी. पहले वहां पे शराबबंदी नहीं थी, नेचुरली तो वहां पे उसकी लेन देन की जा सकती थी, परंतु जैसे ही शराबबंदी हुई तो वहां पर जो एग्रीमेंट उसके लिक्कर को बेचने के संबंध में किए गए थे दे बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ड्यू टू विच दे दोज एग्रीमेंट्स बिकम कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वाइड एग्रीमेंट्स. वो वाइड बन गए एंड इट हैज ऑलरेडी बीन फुली परफॉर्म्ड. तो यदि वो एग्रीमेंट जो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपसे बताया कि वाइड है, यदि उसको परफॉर्म कर दिया गया है तो सम एग्रीमेंट्स आर जस्ट हार्म इन द सोसाइटी. नेचुरली कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी होते हैं जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. दी विच आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, जो कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं. तो सच एग्रीमेंट्स आर एग्रीमेंट्स इन द स्टेट ऑफ मैरिज. ऐसे एग्रीमेंट कौन से हो सकते हैं? या तो मैरिज के स्टेट में भी किसी की शादी रुकवाने के लिए हमने कोई एग्रीमेंट किया, किसी के व्यापार के अंदर बाधा डालने के लिए कोई एग्रीमेंट किया, या फिर किसी की लीगल प्रोसीडिंग्स जो वो केस फाइल ना कर पाए उसके संबंध में कोई एग्रीमेंट किया. तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं ना वो पूरी तरह से वाइड माने जाते हैं, कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 26, 27 एंड 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन 26 बताता है यदि मैरिज को रिस्ट्रेंट करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाए. सेक्शन 27 कहता है ट्रेड को रिस्ट्रेंट करने के लिए एग्रीमेंट किया जाए.
और सेक्शन 29 कहता है लीगल प्रोसीडिंग्स को रिस्ट्रेंट करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाए। तो इस तरह के जो तीनों मैंने जो एग्रीमेंट बताए, दीज आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वाइड एग्रीमेंट्स, एंड दीज एग्रीमेंट्स आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाय द सेक्शन 26, 27 एंड 28 रिस्पेक्टफुली। जैसे मैंने आपको बताया, तो एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 26 and it says that the agreement in the state of marriage will be wide। भी यदि किसी की शादी को रुकवाने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है तो वो वाइड की कैटेगरी में शामिल होगा। इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ लो वर्सेस पुअर्स। इन दिस केस द डिफेंडेंट कंटेंडेड दैट इन द मैरिज एनी पर्सन एक्सेप्ट द प्लेंटिफ he would give her £1,000 within 3 months of the marriage। So in this case, it was held that such agreement was void agreement. If we talk about the agreement in the state of trade, that is described under Section 27 of the Indian Contract Act. According to Section 27, agreement in the state of trade will be void under Section 27. That is any agreement that debars any person from starting any continuous trade, भी कोई भी व्यापार करने से उसे रोके, और to perform any profession। तो ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किया जाता है रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड के लिए, प्रोफेशन को करने से संबंधित उसको रोकने के लिए, तो ऐसे एग्रीमेंट वाइड की कैटेगरी में शामिल होते हैं अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये मैंने आपको बताया वाइड एग्रीमेंट के संबंध में। एंड देयर इज अ वैलिड इंटरेस्ट दैट द पार्टी इम्पोजिंग द रेस्ट्रेंट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट। जैसे मैंने आपसे बताया कि वैसे तो वो वैलिड है, इंटरेस्ट तो वैलिड है, परंतु क्योंकि वो पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं उसको रेस्ट्रेंट करने के पर्पज से कर रही है, शादी को रोकने के पर्पज से, ट्रेड को रोकने के पर्पज से, लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकने के पर्पज से, तो ऐसे एग्रीमेंट जो होंगे वो वाइड की कैटेगरी में शामिल होंगे। एंड द such restraint is no more than that which is necessary to protect this interest, and the restraint is not contrary to the public interest। so this was the all about the wide agreements एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये मैंने आपको वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कुछ बताया है, क्योंकि कई जनरली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द वाइड एग्रीमेंट्स, व्हेन एंड डिस्क्राइब द कंडीशंस व्हेन द एग्रीमेंट्स विल बी वाइड। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वाइड एग्रीमेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट। थैंक यू।